हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस वीडियो में, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है हमें जो भी हमें क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस के पार्ट्स दिए गए हैं बाय यूजिंग suitable identity, because the last two parts we used some identities to solve the question or factorize the question. Okay, now first we convert it in the identical form. पहले हम इसे identical form में convert करेंगे ताकि हम इसे देख करके ये लगे कि किसी इसमें हम कोई identity यूज कर सकते हैं कि जो भी सुइटेबल हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन प्लीज। फर्स्ट नोट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 27 minus 125 a cube minus 125 a plus 225 a square. Now convert it. I can write 27 3 raised to the power 3, 3 into 3 into 3 you know well, minus 5a whole raised to the power 3. It means 5a into 5 into 5 3 times, and multiply by 5a 3 times, and we get 125 a cube. Okay. Now in this term, in both terms, no one is a complete square or complete cube. So we take common, which is the HCF of both. Okay. Now we can take a and 3 5 is 15, 3 is 45. 45a is the HCF of both terms. Then remaining is 3 minus 5a. You can divide 45a by 45a to 135 and 225 a square. आप इधर साइड में से डिवाइड करके देख सकते हैं 135a अपॉन 45a प्लस 225a स्क्वायर अपॉन 45a माइनस। ओके, बिकॉज हमने माइनस का कॉमन लिया है, फिर माइनस कॉमन लेने पर ब्रैकेट में अदर नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस माइनस a बन जा a एंड 5 9 जा 5 2 जा 5 7 जा 9 1 जा 9 9 3 जा 27. ओके, नाउ 3 इज रिमेनिंग हियर। इस माइनस का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इस प्लस में, तो ये वाली डिजिट जो हमारी नेगेटिव हो जाएगी। नाउ डिवाइड, a से a कैंसिल आउट हो गया, एक a हमारा यहाँ बच जाता है। देन वी गेट 45 से डिवाइड करिए, 45 5 जा 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 20 22. Okay, 5a is remaining after dividing 45a. Okay, now this is the bracket. Now one more step is a cube minus 3 into 3 times first term 3 into second term 5. मैंने 45a को डिवाइड किया 3 टाइम फर्स्ट टर्म a into second term 5a, 3 3 जा 9 5 जा 45a. Okay, now we can apply the identity which is suitable for this given arrangement. Identity is x cube minus y cube minus 3 into x into y bracket x minus y bracket close is equal to x minus y whole raised to the power 3. Okay students, now apply this. X is equal to 3 and y is equal to 5. Now substitute. This implies 3 cube minus 5a whole raised to the power 3 minus 3 into 3 into 5a and 3 minus 5a is equal to 3 minus 5a whole raised to the power 3. देखिए x minus y whole raised to the power 3 and ये एक x वाली जगह पर सब्स्टिट्यूट है, 3 minus 5a whole raised to the power 3. Now it is not in factorized form, it is in
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ इसे हम 3 माइनस 5a इस ब्रैकेट का हम 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन के रूप में शो करेंगे एंड यहाँ पर पुट करेंगे 3 माइनस 5a, बिकॉज यहाँ पर बेस की 3 पावर है तो बेस का हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 5a and 3 minus 5. This is the factorized form of 27 minus 125a cube minus 135a plus 225 a square. Okay, this is the answer. So students, I hope you have understood. Students, this is the fourth part of question number 8. Question number 8 है हमारा factorization of the following and part है हमारा 4 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. इस क्वेश्चन को भी हम पहले आइडेंटिकल फॉर्म में रखेंगे and then use identity to factorize the given expression. Okay, now first note the question. 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. Okay, now I can write it 4 4 जा 60 4 4 जा 16 16 4 जा 64 4a whole raised to the power 3 minus 3b whole raised to the power 3 minus. Now same here हम इसमें से कॉमन लेंगे the HCF of the both terms we can common 36. आप इसे ऐसे ना समझे कि 36 हमने डायरेक्ट कैसे कॉमन ले लिया, आप इसे ऐसे समझें e raised to the power 2 e raised to the power 1 means a we can take common a in both terms. b raised to the power 1 and b raised to the power 2 means b भी हम कॉमन ले सकते हैं. अब आप देखिए क्वांटिटेटिव टर्म्स को. ओके, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले क्वांटिटेटिव टर्म्स यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनमें से कॉमन ले सकते हैं. इट डजंट मैटर. 144 एंड 108 एंड कौन सा नंबर ऐसा है जिन दोनों का एचसीएफ है? देखिए 12 से डिवाइड हो सकते हैं, 12 से डिवाइड हो सकते हैं. 24 से डिवाइड करके देखिए इसे है एंड यू कैन फैक्टराइज बोथ टर्म्स. तो ये जो टर्म्स है ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो सबसे बेटर जो हमारे पास ऑप्शन है वो ऑप्शन है सबसे अच्छा कि आप इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करिए 4a into 3b 4 3 जा 12ab एंड 3 टाइम कर दीजिए उसका 4a into 3b और इन दोनों का कर दीजिए 3 टाइम, बिकॉज इस टर्म को हम 3 टाइम फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म की फॉर्म में ब्रेक करते हैं. तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 3 जा 36ab. ओके, सबसे बेस्ट तरीका है ये करने का. आप इसमें से कॉमन लेंगे 36ab कॉमन लीजिए. 36ab से जब हम इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे देन वी गेट 4a minus 3b 4a minus 3b in the bracket because a cube minus b cube minus 3ab into in bracket a minus b. तो ये दोनों ही टर्म तो हमारे पास बचे नहीं. This is the simplest way to solve this taking common process. Okay, now keep it and again keep it minus 3 times 4a into 3b 4a minus 3b. हम इसे ब्रेक करेंगे 3 टाइम फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. ओके, नाउ अप्लाई द आइडेंटिटी. देन आइडेंटिटी इज इक्वल टू x cube minus y cube minus 3 times x into y in bracket x minus y bracket close x minus y whole raised to the power 3. Okay students, now apply this identity in this given extension. This implies 4a cube minus 3b cube minus 3 into 4a into 3b
ब्रैकेट 4a minus 3b is equal to a minus b whole raised to the power 3 whole raised to the power 3. It is in the exponential form, so write it in factorized form. 4a minus 3b 4a minus 3b and 4a minus 3b, because 4a minus 3b bracket has 3 exponent, so we multiply this bracket 3 times. Okay, this is the answer. This is the exponential form, sorry, this is the factorized form of this given expansion. This is the expansion and this is the, okay, this is the factorized form. Students, this is our fifth part of this question. Fifth part is given 27 pq minus 1 upon 216 minus 9 upon 2 p square plus 1 upon 4 p. Now solve this question, solve this expansion for finding the, now factorize this expansion similarly be by using identity. So first we convert it in identical form. Now solve this. सॉल्यूशन है हमारा, फर्स्ट नोट द क्वेश्चन 27 pq minus 1 upon 216 minus 9 upon 2p square plus 1 upon 4p. Okay students, now I can write it 3p whole raised to the power 3, 3 3 is 9, 3 is 27 minus 1 upon 6 whole raised to the power 3 माइनस, देखिए जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था लास्ट पार्ट में, इन दोनों में से कॉमन लेने में जो प्रॉब्लम आती है उन्हें सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट वे है कि आप 3 टाइम फर्स्ट टर्म 3p इनटू सेकंड टर्म 1/6 ये वाली टर्म इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए. ओके, इसे कॉमन लेने पर जो यहाँ अंतर बचता है, जो यहाँ रिमेनिंग रहेगा, उसे हम रफ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. बहुत सिंपलेस्ट तरीका है, जैसे आप इसे सिंपलेस्ट वे में कर सकते हैं. देखिए 3 3 जा 9 और यू कैन राइट इट, हमने कॉमन लिया है -3 इंटू 3p इंटू 1/6. ओके, ये कॉमन लिया है हमने, इसका मतलब क्या है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मीन्स -3/3p/2 -3p/2 हमने कॉमन लिया है, तो -3p/2 से हम इस टर्म में, यानी इस फर्स्ट टर्म में और इस सेकंड लास्ट वाली टर्म में, इसको हम डिवाइड करेंगे. -9/2p स्क्वायर अपॉन -3/3p/2 एंड प्लस 1/4p, ओके, अपॉन -3/2p. स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डिवीजन. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, एंड ये माइनस जो ये वाला माइनस हम इसे नेक्स्ट टर्म में करते हैं, p से p कैंसिल आउट कर देंगे, हमें एक p यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -3p/2 इनटू ये सबसे ऊपर जाएगा, ये इसके पास आएगा, मींस 9 इंटू 2p अपॉन 2 इंटू 3 माइनस ये जो माइनस है इस प्लस को माइनस कर देगा, इट मींस 1 इंटू 2, ये 2 सबसे ऊपर, एंड अपॉन 4 इंटू 3. ओके, ये प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे, इस प्रोसेस को यहाँ अप्लाई करेंगे. देखिए क्या बचता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मींस -3p/2 ब्रैकेट 3 माइनस 1/6 3p माइनस 1/6. इस तरीके से देखिए ब्रैकेट में तो a माइनस b ही बचना है, माइनस x माइनस y ही बचना है, बिकॉज हमने 3 टाइम फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म तो कॉमन ही ले लिया है. लेकिन ये प्रोसेस है सॉल्व करने का जो आपको सही से सॉल्यूशन में मदद करेगा, हेल्प करेगा इन द सॉल्यूशन. ओके,
चलिए तो हमारा यहाँ अब हम इसमें यूज करेंगे आइडेंटिटी विच इज सूटेबल फॉर दिस टू फाइंड द फैक्टर्स. ओके, नाउ आइडेंटिटी इज identity x cube minus y cube minus 3xy x minus y whole raised to the power is equal to x minus y whole raised to the power 3. Now comparison this and substitute the value to find the factors. This implies 3p whole raised to the power 3 minus 1 upon 6 whole raised to the power 3 times 3p into 1 upon 6 and x minus y यानी 3p minus 1 upon 6 becomes, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी जैसी है तो इट बिकम्स x minus y मीन्स 3p minus 1 upon 6 होल रेज टू द पावर 3. ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, नॉट फैक्टराइज फॉर्म. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम इसे फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे, सपोर्ट करेंगे. कैसे? 3p minus 1 upon 6 होल रेज टू द पावर 3 है, इट मीन्स 3p minus 1 upon 6 का मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा. 3p minus 1 upon 6 and 3p minus 1 upon 6. It is the answer. This is the factorized form of this given expression. जो एक्सप्रेशन हमें दिया है उसका ये फैक्टराइज फॉर्म है. आई होप स्टूडेंट्स आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो. यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें. थैंक यू. हैव अ गुड डे.